Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the Section 44 AD linkage with Section 44 AB related to tax audit. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. एंड प्लीज वन मोर रिक्वेस्ट, वीडियो भी लाइक कर दो बिकॉज इट गिव अस लोड्स ऑफ मोटिवेशन. आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से वी गेट फीडबैक, मोटिवेशन. सो थैंक यू वेरी मच. And regarding this today's topic, this is very very important regarding the linkage of section 44 AD with the tax audit. And in our previous video we had discussed about the section 44 AB, the tax audit limit, whether it's a 50 lakh rupees, 1 crore, 2 crore, 10 crore. So my request to all of you, if you missed that video, प्लीज गो टू द लिंक. आप टैक्स ऑडिट लिमिट का वीडियो सीए संसार यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. अदरवाइज वी विल आल्सो गिव यू इनटू द आई बटन, उसका लिंक मिल जाएगा. यू मस्ट चेक दैट वीडियो. सो today we will discuss about the section 44 AD, but before that one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed the views of the ICI, CA Sansar or any other person or any other authority, and don't take it any legal advice, legal opinion, and any professional opinion, professional advice. And the purpose of this video to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please check the ICI guidance note, relevant income tax section, any income tax notification, circulars, income tax rules regarding this. So regarding this section 44 AB we have already discussed. इसके ऊपर हमने डिस्कस किया पूरा डिटेल में. आप वीडियो चेक कर लेना. 44 AB क्लोज A, then what would be the limit if there are digitalized payment and digitalized received, then 44 AB close B, then close C, and then close D and close E. And this close E, this is very important. This is very important because this is linked with section 44 AD. What it says, carrying on business shall, if the provision of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. तो जो टैक्स ऑडिट है, whenever if any tax audit आपको करवाना है 44 AB में, क्लोज A में, तो you have to go to section 44 AB. इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस किया है. You can check that the video of section 44 tax audit limit. Today we will discuss section 44 AD. So section 44 AD, इसका concept basically government bring this section for to give the relief to small and the medium sized taxpayer so that they can show certain percentage of their turnover, gross receipts or the sales as their income, as declared income, and then no need to maintain any books of accounts जो section 44 AA में है, or there no need to go for the accounts audit. So this was the concept for to give the relief to the small or the medium sized taxpayers. And then if we go to the section 44 AD, अगर आप सेक्शन 44 AD में सेक्शन 44 1 2 3 4 5 that we will discuss, तो this is the special provision for computing profit and gains of business on presumptive basis. So this is for the business. We are all aware about that. Section 44 AD is for the business and 44 ADA, that's for the profession. So section 44 AD subsection 1, it talks about the notwithstanding. इसके ऊपर पहले एक बार हम लैंग्वेज चेक कर ले, then we'll give you the idea through the flow chart or through the example. So notwithstanding anything to the contrary contained in section 44 section 28 to 43C in the case of an eligible assessee, means this section 44A, this overrules section 428 to 43C. Then it says if an eligible assessee engaged in an eligible business, मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, eligible assessee, eligible business,
a sum equal to 8% of the total turnover gross receipt of the assessee in the previous year on account of such business, or as case may be, a sum higher than aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to the profit and gains of such business chargeable to tax under head PGBP, profit and gains of business and profession. तो इसके ऊपर अभी हम डिटेल डिस्कस करते हैं. Then provided they have also given a provision that in case if the amount of total turnover gross receipt which is issued by an account pay check or account pay draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode जो CBDT ने notify कर रखे हैं, then in that case this 8% should be read as a 6%. तो 44 AD clause 1 में subsection 1 में it talks about 8% or 6% कि you have to show. आपको अगर आपका एलिजिबल असेसी एलिजिबल बिजनेस है तो आपको इतना परसेंटेज आपको अपना एज ए डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा आपकी टर्नओवर ऑफ ग्रोस रिसीप्ट्स का इफ यू गो फॉर द सेक्शन 44 एडी. देन close this one section subsection 2 subsection 3 4 5. So 2 talks about any deduction allowable under the provision of section 30 to 38 shall for the purpose of subsection 1 to be deemed to have been already given full effect to and no further deduction those sections shall be allowed. I already told you it's override section 28 to 43C. तो जितने भी रिडक्शन है 30 to 38 में तो वो आपको एंटरटेन नहीं होंगी. देन डेप्रिसिएशन का भी उसमें सबसेक्शन 3 में टॉक्स अबाउट द रिटर्न वैल्यू ऑफ एनी एसएससी ऑफ एलिजिबल बिजनेस shall be deemed to have been calculated as if the eligible SE have claimed and have been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment year. Then subsection 4 subsection 5 उसमें हम करेंगे अभी इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे. देन सबसेक्शन 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसेक्शन 6, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन notwithstanding anything contained in the foregoing provision shall not apply. तो जो 44 AD के जो प्रोविजन है shall not apply. नंबर 1 इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44AA. तो जो प्रोफेशनल स्पेसिफाइड है इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 में उनके ऊपर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, दे कांट ऑफ दिस वन. एंड देन सेकंड, ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज. तो अगर कोई कमीशन एजेंट और ब्रोकरेज है या फिर थर्ड है एजेंसी बिजनेस, इन तीन केस में आपके ऊपर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, दे कांट अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 AD. दिस इज इन सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 6 दिस टॉक्स अबाउट. तो नाउ लेट्स सी सेक्शन 44 AD जो हमने सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया. फर्स्ट थिंग इज एलिजिबल एसएससी. कौन है एलिजिबल एसएससी अभी डिस्कस करते हैं. देन एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल एसएससी होना चाहिए, एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए. देन टर्नओवर और ग्रोस रिसीप्ट्स, कुछ उसकी फिक्स अमाउंट है वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो अगर ऑल दीज कंडीशन दिस वन अलाउड ऑल दिस, देन यू हैव टू शो योर प्रॉफिट या इनकम 8% ऑफ योर टर्नओवर, और अगर बैंक के थ्रू रिसीप्ट है ऑल पेमेंट देन 6%, और यू कैन क्लेम हायर एज द डीम्ड प्रॉफिट. तो दिस इज रिगार्डिंग द एक क्रक्स ऑफ सेक्शन 44 AD. तो इसको अगर आप देखो, एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल एसएससी किसके ऊपर, हु कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 AD. फर्स्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन से, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ही इज द एलिजिबल पर्सन. देन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, also resident Hindu undivided family. Then partnership firm also can claim section 44 AD except LLP governed by the MCA, Ministry of Corporate Affairs, उसके थ्रू. तो LLP cannot claim section 44 AD. And this one, resident partnership firms, this one is eligible SSC. इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, who cannot, इनके अगर eligible SSC है, अगर eligible SSC avails the deduction under any of the above section, कि अगर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA में अगर उन्होंने कोई डिडक्शन क्लेम करी है, then he cannot claim section 44 AD. और एक तो ये हो गया, या फिर चैप्टर 6A में कोई डिडक्शन क्लेम करी है रिलेटेड टू इनकम, जो आपके हेडिंग C में है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स. तो अगर वो उन्होंने कोई क्लेम करी है, देन आल्सो कैन नॉट ऑफ सेक्शन 44 AD.
This is regarding the eligible SSC. Then eligible business. Eligible business में any business except clearly starting में इन्होंने कह दिया कि if any business of playing, hiring or leasing goods carriage referred to in section 44A, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक और सेक्शन है 44A, अगर आपके पास टैक्स हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स वर्क सेक्टर है तो उस केस में भी यू कैन नॉट ऑप्ट सेक्शन 44AD. तो क्लियरली इन एलिजिबल बिजनेस है दैट वन जो सेक्शन 44AE में रेफर है. एंड द सेकंड कंडीशन एलिजिबल बिजनेस के लिए, इफ द टर्नओवर और ग्रोस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड्स एन अमाउंट ऑफ ₹2 crore. तो अगर आपकी टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट अप टू 2 crore रुपीज है, देन ओनली यू कैन ऑप्ट सेक्शन 44AD, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑप्ट. एंड देन जो भी हमने 44AD6 में डिस्कस किया था, जो 3 पॉइंट्स थे, कौन कौन अवेल नहीं कर सकते दिस सेक्शन 44AD को. फर्स्ट, इफ द पर्सन, अगर कोई प्रोफेशनल है रेफर्ड इन सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1 में, देन ही कैन नॉट क्लेम अंडर सेक्शन 44AD. देन अगर कोई बिजनेस कर रहा है एजेंसी बिजनेस का, देन आल्सो ही कैन नॉट अवेल. एंड द थर्ड, कमीशन और ब्रोकरेज का बिजनेस है, देन आल्सो ही कैन नॉट क्लेम. सो दिस इज द क्रक्स. नाउ विल डिस्कस वन बाय वन थ्रू द एग्जांपल. उससे पहले एक और है कि जो 44AA में जो हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जो सॉरी मैं अगर 44AD बोल गया तो 44AA में जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है सबसेक्शन 1 में, and there are some other professionals also. So whether they can include in business, so there are one Supreme Court judgment is also there. So they are also, because profession business does not include profession. तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि if it's not in section 44AA subsection 1 में वो नहीं है तो they can also claim the 44AD. No, they cannot claim. So this is my view. Maybe it can be differ from some others, so that you can check it out. But as per my view, business does not include profession. Then section 44AD में जो नॉन एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल तो मैंने आपको बता दिया, तो नॉन एलिजिबल कौन से हैं? फर्स्ट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म हु आर नॉट रेजिडेंट. ओके, एलएलपी मैंने आपको बता दिया, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज. देन अगर आपने इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म है, रेजिडेंट है, उन्होंने सेक्शन 10, 10A, 10B, 10B में उसमें कुछ डिडक्शन क्लेम करी है, या फिर जो आपकी इनकम से रिलेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H उसमें है आपकी चैप्टर 6A में रिगार्डिंग द 80H to 80TT, अगर वो भी क्लेम करिए, देन आल्सो इट्स द इनएलिजिबल एसएससी. सो नाउ कुछ और एफएक्यूज हैं. नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेदर सेक्शन 44AD इज ए मैंडेटरी, कि मेरे को ऑप्ट ही करना है. तो इन देयर एफएक्यूज डिपार्टमेंट हैज सेड कि दिस इज नॉट ए मैंडेटरी सेक्शन, दिस इज ए फैसिलिटी अवेलेबल. It's your choice, it's the choice of the eligible assessee whether they can opt section 44AD or not. Second thing, if I opt for section 40AD, so whether I have to maintain books of accounts. So this is also answered in the FAQs कि if you opt for section 44AD और आप अपनी जो आपने इनकम डिक्लेयर करते हो, जो प्रॉफिट्स है 6% और 8% ऑफ द ग्रोस रिसीव्ड्स एज द केस में भी, देन नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी. सो दिस इज सम फ्यू इंपॉर्टेंट एफएक्यूज आर देयर. तो एक एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट, कैन ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट opt section 44AD? तो I already told you, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर इनटू द स्पेसिफाइड सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 में मेंशन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन है. तो प्रोफेशनल उनके लिए अलग से है 44ADA, तो दे कैन नॉट ऑप्ट. देन सेक्शन एग्जांपल सेकंड, राम इज कैरिंग an eligible business which is primary business and turnover of that business is 60 lakh and also had the earned commission income of ₹50,000. अब commission income, अगर मिस्टर राम आल्सो डूइंग द कमीशन इनकम, तो कमीशन के लिए हमने 44AD सबसेक्शन 6 में देखा था, तो दे आर इनएलिजिबल. तो अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है मिस्टर राम अदर जिसमें कमीशन या फिर 44AD में स्पेशल है, और एंड जो थर्ड वर्ड आपका था ब्रोकरेज, कमीशन ब्रोकरेज और उसके, तो इन दैट केस उनके लिए टोटली इनएलिजिबल है, वो कर ही नहीं सकते उसके लिए क्लेम. And then third case, Ravi is an interior decorator, so he is also into the 44AD, 44AA subsection 1, having gross receipt of profession 25 lakh rupees. He is also having income of selling plywood and turnover amount of 10 lakh.
कैन ही क्लेम ऑफ सेक्शन 44AD फॉर प्लाईवुड बिजनेस? तो इस केस में भी ही कैन नॉट ऑप्ट, ये भी सेक्शन 44AD सबसेक्शन 6 की इनएलिजिबिलिटी आ जाएगी, आप उस केस में नहीं क्लेम कर सकते। देन कैन ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट being a professional not covered under section 44AA1 take the benefit of section 44AD? तो उस केस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिजनेस डज नॉट इंक्लूड प्रोफेशन, तो इस केस में भी ये क्लेम नहीं कर सकता। देन ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ए पार्ट from the profession of consultancy is also the business of selling gift articles, is he can take the benefit of section 80 from the business of gift articles? तो in this case he can जो आपका है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो 44AA सबसेक्शन 1 में नहीं कवर होता, तो इन दिस केस तो एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबल है। तो इन दिस केस फॉर अदर बिजनेस, जो उसका अदर बिजनेस है सेलिंग गिफ्ट आर्टिकल्स, उसके लिए ही कैन ऑप्ट सेक्शन 44AD। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट let's move to the new example. Mr. A carrying on business and his total turnover from the business is 1.96 crore. He opted for presumptive taxation. So first you have to check the eligibility. Mr. A individual है, yes. Eligible business है, turnover 2 crore से less है, yes. तो उसने opt किया presumptive taxation and declared profit of 12.75 lakh rupees. He derived his total turnover by account paycheck. Do he required his accounts, books of account for audited under income tax act? No, because उसका 6% उसको शो करना है, तो उन्होंने शो कर दिया, तो no need to go for the tax audit. Then next is Mr. A who engaged in the business of trading of grocery item having a turnover of 2.5 crore. 2.5 crore turnover, he is having an opinion that since eligible assessee, he can show profit up to 8% of turnover, and further he is not required to get his account audited under section 44AB. So this is his wrong intention, because the turnover criteria क्या है? 2 crore, and is in this case turnover exceeds 2 crore. So he cannot go for section 44AD, उसको अपना सेक्शन 44AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा, चाहे वो 8% या 8% है, वो भी अपने प्रॉफिट की शो कर दे। तो आपको ही हैज टू चेक 44AB क्लोज ए में चेक करना पड़ेगा वेदर इट्स 1 करोड़ और 10 करोड़। 1 करोड़ कब है, 10 करोड़ कब है, ऑलरेडी हमने डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कि वो दो कंडीशन डिजिटलाइज 95% से वो पेमेंट एंड रिसीव्ड्स है, देन 10 करोड़ लिमिट है, अदरवाइज 1 करोड़ है, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन डू, अदरवाइज 44AD में ही कांट डू। देन नेक्स्ट एग्जांपल, एक और क्वेश्चन आया था, टर्नओवर 80 लाख, प्रॉफिट 4.5 लाख। दिस समबडी सेंड मी ऑन माय मेल आईडी कि लेस देन 8% है, बुक्स मेंटेन, कैन वी फाइल ए नॉर्मल रिटर्न आर मैंडेटरी आपको 44AD? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेक्शन 44AD इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर चॉइस, यू कैन गो और नॉट। अगर आप नॉर्मली करते हो तो यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, आप कितना भी प्रॉफिट दिखाइए, बट नो नीड टू गो फॉर द टैक्स ऑडिट, क्योंकि आपकी लिमिट नहीं है, 80 लाख से लेस है, तो यू कैन गो फॉर दैट। वो अलग बात है, स्क्रूटनी है और सम अदर थिंग्स, बट अदरवाइज यू कैन गो फॉर दैट। देन टर्नओवर लिमिट जो 2 करोड़ रुपीस की है, मिस्टर एक्स जो टर्नओवर लिमिट है, वेदर दिस इज फॉर द बिजनेस और दिस इज एसएससी वाइज, इट मीन्स उसके कोई और भी बिजनेस है, तो उसका टोटल चेक करना है या सिंगल बिजनेस वाइज। तो इट टॉक्स अबाउट द टोटल, कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ 30 लाख रुपीस, ट्रेनिंग बिजनेस है 50 लाख रुपीस, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, रनिंग कोचिंग क्लासेस 30 लाख। तो आपको सिंगल चेक नहीं करना, अगर सिंगल चेक करोगे तो यू कांट ऑप्ट 44AD, बट टोटल एसएससी वाइज, तो इन दिस केस टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट्स इज अराउंड 2.1 करोड़, तो इट्स अबोव, तो उसमें आपको अबोव है, सॉरी मैं उसका रिवर्स बोल गया, इंडिविजुअल चेक करोगे तो यस ही कैन ऑप्ट, बट टोटल ही हैज टू सी, तो उस केस में 2 करोड़ से अबोव है, तो आप ही कैन नॉट ऑप्ट 44AD। देन मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल कैरिंग 2 बिजनेस, ट्रेडिंग 1.25 lakh, गुड्स कैरेज बिजनेस एज मेंशन इन सेक्शन 44A। तो इन दिस केस वेदर सेक्शन 44 एप्लीकेबल? यस, डेफिनेटली एप्लीकेबल, बिकॉज जो आपका 44A है, दिस इज इन एलिजिबल बिजनेस, दिस इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन 44AD सबसेक्शन 6।
उसमें कवर नहीं है। इसमें स्टार्टिंग में ही कह दिया एनी बिजनेस एक्सेप्ट गुड्स एंड कैरीज अंडर सेक्शन 44A। तो इन दिस केस वी विल चेक ट्रेडिंग बिजनेस, तो उस केस में कितनी टर्नओवर है 1.25 करोड़, तो यस मिस्टर एक्स कैन ऑप्ट फॉर दैट। देन नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन इसमें, काफी क्वेरीज आई थी इसमें, सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। तो सबसेक्शन 4 एंड 5 में एक बार लेट्स सी सेक्शन में क्या मेंशन है, देन विल चेक थ्रू द फ्लो चार्ट, उसमें मैं आपको पूरा कुछ क्या कंडीशंस है विल डिस्कस अबाउट दैट। तो इसमें ये सबसेक्शन 4 इट टॉक्स अबाउट वेयर एंड एलिजिबल एसएससी declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section। कि कोई एलिजिबल एसएससी है, उसने डिक्लेयर प्रॉफिट कर लिया एंड ही डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which such profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1। And then section 44AD subsection 5 and subsection 5, notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible assessee to whom the provision of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of account and other document as required under subsection 2 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under subsection 44AB और क्लोज ई में जो पीछे हमने डिस्कस किया था। तो इसको एक बार लेट्स सी 44AD कब एप्लीकेबल है। 44AD तभी एप्लीकेबल है कि अगर एक बार आपने ऑप्ट कर लिया, 44AD को आपने ऑप्ट कर लिया और आपने अपनी डिक्लेयर कर दी इनकम प्रॉफिट जो है 8% और 6%, और उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर ऑप्ट कर दिया, इसके बाद कभी अप टू 5 इयर्स तक अगर आपने कोई लेस देन 6 ईयर ऑप्ट किया है, देन इन दैट केस assessee not eligible to opt that scheme 44AD for next 5 years। like 1 ईयर, फर्स्ट ईयर आपने ऑप्ट कर ली, सेकंड ईयर भी ऑप्ट कर लिया आपने, थर्ड ईयर आपने ऑप्ट नहीं करी, तो आपको क्या करना था, फर्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट 5 ईयर तक ऑप्ट करना था, बट आपने थर्ड ईयर ऑप्ट नहीं करी, तो थर्ड ईयर से उसके बाद फोर्थ से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक यू कैन नॉट ऑप्ट सेक्शन 44AD। और देन सबसेक्शन 5 इट टॉक्स अबाउट अगर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है सबसेक्शन 4 और उनकी टोटल इनकम, दैट पर्सन जो एलिजिबल एसएससी है, टोटल इनकम एक्सीड द मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो देन गो फॉर द टैक्स ऑडिट जो अभी हमने डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 44AB सबसेक्शन E। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के थ्रू यू हैव मोर क्लैरिफिकेशन। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 1920 में टर्नओवर है 1.2 करोड़, तो 1.2 करोड़ लेस देन 2 करोड़ है तो आप एलिजिबल एसएससी है, एलिजिबल टर्नओवर है, तो आपने प्रॉफिट शो किया 8%, प्रॉफिट शो कर दिया, तो यू कैन ऑप्ट फॉर 44AD। नाउ आफ्टर 1920 के बाद आपको 5 इयर्स तक 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 नेक्स्ट 5 इयर्स तक यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस 44AD और आपको अपना जो प्रॉफिट्स है 8% 6% एस केस में भी आपको शो करना है। तो नाउ नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपकी टर्नओवर है 1.5 करोड़, यस ओके, प्रॉफिट आपने शो किया 10 लाख विच इज लेस देन 8%, जो आपका 8% आपको शो करना है विच इज लेस देन 8%, तो इट मीन्स आपने 44AD को नहीं ऑप्ट किया। तो इन दिस केस व्हाट हैपन, इन दिस केस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको देखना पड़ेगा 44AB में या प्रोविजंस में, 44AD क्लोज ए में या प्रोविजन क्या एप्लीकेबल है, आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो नेक्स्ट 5 इयर्स है, 2021 से तो आपने ओपन नहीं करा, अब इसके नेक्स्ट 5 इयर्स तक यू कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस 44AD। अब 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 और 25, 26, this next 5 years you cannot opt the benefit of section 44AD। clear?
Now let's see next example. Financial year 2019-20 टर्नओवर 1.2 करोड़, प्रॉफिट आपने 8% शो कर दिया 9.6 लाख रुपीस, आपने ओप्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको ओप्ट करना पड़ेगा, आपको जो आपका प्रॉफिट है 8% या 6% शो करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 आपकी टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट 10 लाख रुपीस, आपका प्रॉफिट लेस देन 8% है, 8% तो 12 करोड़ है। लेट्स अज्यूम कि वो आपकी बैंक्स के थ्रू नहीं है, 6% वाला नहीं है, वो एजम्पशन ले लेते हैं। तो इस केस में आपने टोटल इनकम 9 लाख दिखाई, हो सकता है कुछ सेट ऑफ लॉसेस वगैरह हैं कुछ भी, तो 9 लाख आपकी इनकम दिखाई। तो आपने ओप्ट नहीं किया 2021 में, तो इन दिस केस 44AD तो आपने ओप्ट नहीं किया, तो इस केस में आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं 44AB क्लोज ए में, वो रेलेवेंट विद द जो आपकी डिजिटल पेमेंट है 95% आर मोर, जो उसमें 1 करोड़ है 10 करोड़ है वट एवर इट में भी, तो आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर, अब इसके 5 ईयर्स तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप 44AD क्लेम नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ सबसेक्शन 5 आल्सो विल बी एप्लीकेबल, कि अगर नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम, आपने टर्नओवर है 70 लाख, आपका टर्नओवर है 70 लाख, अगर फॉर एग्जांपल 21-22 में, और आपने प्रॉफिट इवन 8% से अबोव भी शो कर दिया, देन आल्सो जो 44AD सबसेक्शन 5 विल बी एप्लीकेबल। अगर आपकी टोटल इनकम 8 लाख रुपीज है, देन टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB क्लोज ई में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फॉर दिस आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन whether the tax audit is applicable even if the turnover is less than 1 crore rupees। तो इस केस में आपकी टर्नओवर 70 लाख रुपीस है, तब भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। इन दिस केस सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 रेड विद सबसेक्शन 5। क्लियर? तो इन दिस केस योर टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट एक जो नेक्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसमें भी आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस है, प्रॉफिट 5 लाख रुपीस है, तो 44AD 45 में क्या होगा, टोटल इनकम 2 लाख है, बट हियर द इनकम, टोटल इनकम जो है इट्स लेस देन द मिनिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो इस केस में आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। क्या कंडीशंस है? फर्स्ट, section 44AD subsection 4 applicable, and also total income exceeds the minimum amount chargeable to tax. So if both two conditions are applicable, then subsection 5 of section 44AD would be applicable, और आपका टैक्स ऑडिट होगा या नहीं, that depends कि क्या इनकम है उसकी। Clear? Let's go for another example. In case of Mr. A, अगर Mr. A फाइनेंशियल ईयर 2018-19 टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस, डिक्लेयर इनकम 12 लाख, 8% है, और उन्होंने ओप्ट कर लिया ये। नाउ इन नेक्स्ट ईयर टर्नओवर 1.2 करोड़, तो उन्होंने लेस शो कर दिया। सो इन दिस ईयर जो ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 टर्नओवर 1.2 करोड़ रुपीस, शो 5% प्रॉफिट। इन 2021 इफ इज टोटल इनकम इज अबव एग्जम्पशन लिमिट, ऑब्वियसली बात है, ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो जो 19-20 में है आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन सेक्शन 44AB क्लोज ए में, एंड यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड आल्सो नेक्स्ट ईयर आप उसके 5 ईयर्स तक आप क्लेम नहीं कर सकते 44AD के जो भी बेनिफिट्स हैं, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 5 ईयर्स तक क्लेम नहीं कर सकते। एंड आल्सो आपका सबसेक्शन 5 वुड आल्सो एप्लीकेबल, कि अगर टोटल इनकम आपकी एक्सीड्स है, देन इन दैट केस आपका टैक्स ऑडिट भी होगा 44AB क्लोज ए में। देन लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इन केस ऑफ मिस्टर ए, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 टर्नओवर इज 1.5 करोड़, डिक्लेयर इनकम 12 लाख, वो 8% है, एंड ओप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम जो है 44AD में ओप्ट कर लिया 2018-19 में। अब 19-20 में टर्नओवर एक्सीड्स 2.2 करोड़ रुपीस, इस केस में तो ओप्ट ही नहीं कर सकता कोई, मेरे पास वाइस ही नहीं है, क्योंकि मेरी टर्नओवर एक्सीड्स है। तो इस केस में तो नॉर्मल जो आपके जो
सेक्शन 44AB बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू मेंटेन, वो आपको करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट ईयर वेदर आई कैन ओप्ट, next year my turnover is 1.8 crore. So next year whether I can opt 44AD or not, yes, you can opt for that. So here it's mentioned section 44AD4 कब attract होगा? When the assessee declare the profit less than 8% or 6%, the taxpayer will not eligible to opt for a presumptive income scheme for the next 5 years. But this section would not be applicable where the taxpayer cannot opt for the presumptive scheme due to non-eligibility. कि मेरी टर्नओवर एक्सीड्स हो गई या 4486 में आ गया, तो उस केस में आपके 5 इयर्स तक नहीं जाएगा. उस केस में नेक्स्ट ईयर इफ यू आर एलिजिबल देन आल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. बट यस, इन दैट ईयर जिस ईयर आपका एलिजिबल नहीं है, आपको अपना जो प्रॉफिट्स है 8% या 6% जो भी है वो शो करना पड़ेगा. क्लियर? सो इस केस में मिस्टर ए कैन ओप्ट, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में डेफिनेटली ही कैन ओप्ट फॉर द प्रेजेंट इनकम 44AD में. देन नेक्स्ट केस, इन केस ऑफ मिस्टर बी, तो ये भी मैंने वो लिया था आपका ऑन टर्नओवर बेसिस. हेयर आई कंसीडर 44AD में 6 में कि आपने कमीशन इनकम है कि पहले आपका आपने ऑप्ट कर दिया 44AD, अब आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको ऑप्ट करना पड़ेगा 44AD. बट 1920 में यू कांट ऑप्ट बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल, आप ऑप्ट ही नहीं कर सकते. तो इन दिस ईयर आपको नहीं ऑप्ट करना पड़ेगा. बट यस, 2021 में इफ यू आर एलिजिबल यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. तो सेम थिंग इज हेयर कि आप ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी, अगर ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी है तो इन दैट केस इट डजंट मीन कि आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप क्लेम ही नहीं कर सकते. नो, दैट्स ओनली व्हेन आपने 4% या 6% सॉरी 8% या 6% एस केस में भी इनकम उससे कम डिक्लेयर करिए, देन ओनली सेक्शन सबसेक्शन 4 वुड बी एप्लीकेबल. देन उसके नेक्स्ट 5 इयर्स तक अगर आपने नहीं ऑप्ट किया तो उससे नेक्स्ट 5 इयर्स तक यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर 44AD का बेनिफिट्स हैं जो भी. देन अदर एस्पेक्ट्स, कुछ और इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं लाइक जो already told in section 44AD subsection 1 it's overruled 28 to 44C. तो जितने भी अलाउंस जो है एक्सपेंडिचर है 48(3) में 48(2) में 36 47 तो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर दिया. बट यस, कोई और इनकम है अदर एसएससी की लाइक कैपिटल गेन में या हाउस प्रॉपर्टी में, तो इट डजंट मीन उसको भी 6% या 8% लेंगे. दैट्स ओनली द बिजनेस ऑफ ओनली द इनकम ऑफ बिजनेस, उसको 6% या 8%. अदर जो इनकम्स हैं कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी, उसको आपको एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करनी है. एंड देन जो आपका सेट ऑफ लॉसेस है दे आर नॉट इनटू सेक्शन 28 टू 44C, दैट्स एप्लीकेबल. तो सेटअप लॉसेस को जो आपके बिजनेस के हैं उसको आप सेटअप कर सकते हो फ्रॉम द इनकम डीम्ड अंडर सेक्शन 44AD में, दैट्स अलाउड. सो अदर वन पीछे हो गया. हाँ, then in next our video we will discuss about the section 44ADA जो प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 44ADA उसको कैसे लिंक करना है विद द टैक्स ऑडिट. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस 44AD वी हैव डिस्कस अबाउट, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया 44AD के. तो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग 44AD लाइक एलिजिबल एसएससी या फिर एलिजिबल बिजनेस और द टर्नओवर, तो you can message, you can WhatsApp, you can email me on this my number. But once again my request to all of you, please mention your name because don't know professional क्यों शर्माते अपना नाम बताने में या place बताने में. Only mention your name and place and will reply you as early as possible, जितना जल्दी मैं reply कर पाऊंगा. So once again my sincere thanks. और we have received many messages, काफ़ी मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा उनके, काफ़ी लोगों के शुभम एंड अदर पीपल हरीश जैन एंड और काफ़ी लोगों के आंसर्स आए थे नीचे. बट जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग लेस देन 1 करोड़, तो दैट्स इन सेक्शन 44AD सब सेक्शन 5 में. लेस देन अगर आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ रुपीज देन ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर द टैक्स ऑडिट. सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.